It's a remarkable run chase. It's a remarkable revenge we have taken, and India thrashed Pakistan with the power of Virat Kohli's international 8200, and it's a remarkable match victory torn and valuable Shreyas Iyer innings. Hello and welcome once again. We have beaten Pakistan in this ICC Champions Trophy 2025, and here we have registered a delighted Dubai ODI victory. So it was the toughest run chase on the toughest tricky pitch, and it was the 242. We have chased. Firstly, Pakistan had winning the toss and decided to bat first. And one stage, Pakistan were looking to a steady start, 41 from the first wicket. But our bowlers has come back, especially it was the frustration start from Mohammad Sami. He has went back to the pavilion, but after some time he has come, and the breakthrough, it has been given to Hardik Pandya for the first wicket of Team India, and then the wicket has started falling off Pakistan. So it was the very slowest partnerships of Rizwan and Saud, and Rizwan got out just 77 balls he has taken, and it was very slowest innings. Last match Babar Azam has taken in 90 balls, and here Rizwan had taken so many balls. So it was the very slow partnership, and Pakistan did not come out of this slowest run making on the batting first. In the last, Khusdil has hit 6 and 4 against the Sami in the slog overs. So it was the fighter total, but not a decent total on the slow track. And Rohit departs early after a fiery start, but it was the well set Virat Kohli. He is a big player on the biggest match. Last time we have remember the Melbourne innings in T20 World Cup, and here just 4 runs needed. It was a, you can say, tricky to complete their 51st international ODI 100 and 82nd international century. So now he has become a most successful Indian fielder. He has passed Mohammad Azharuddin 156 catches, and now Virat has a 157. So overall, it's a greatest victory. 45 balls spare, and Shreyas Iyer. We cannot forget the partnerships between Kohli and Shreyas, and it was 100+ partnerships once again, and India has reached into the comfortable position when Shreyas has gone, and then Kohli has taken a uh, uh, led their team into the victory path. Hardik has come and gone, then Achhar has come, and we have beaten Pakistan in their den, because last 6 years Pakistan has played most of the cricket at Dubai. तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला, एंड भारत के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैच था। पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति थी, एंड पाकिस्तान ने इस मैच को गंवाया, और इस तरीके से भारत ने इस मैच को जीता। सो वी हैव सो हैप्पी, एंड जिस तरीके से भारत ने जीत की डोमिनेंस किया पाकिस्तान को। सो इट वाज ए आल्सो ए रिमार्केबल रिवेंज, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का रिवेंज था, भारत ने लिया। और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी गलतियां हुई इस मैच में। अब जब आप टॉस जीतते हो तो आपको एक डिसेंट टोटल लगाना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं, और भारत के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया अंडर 250, एंड देन वी हैव चेस्ट दिस स्कोर। पिच कहीं से भी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे वो सेकंड इनिंग्स हो। तो भारत ने एक महत्वपूर्ण मुकाबला जीता, लेकिन अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, और जो नेक्स्ट मैच है इट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, एंड न्यूजीलैंड हैड last time met, it was the final of the ICC Champions Trophy. Then it was the another name, it ICC Knockout 2000 at Nairobi, and then uh, we can say it was a भारत वह फाइनल जीत रहा था। इट वाज ए थ्रिलर,
और लास्ट में आके क्रिस केरल्स ने जो शतक बनाया उसके बदौलत न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीता। और ना सिर्फ मैच जीता, भारत को पहला जो आईसीसी खिताब था वह चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने से दूर किया। और न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को बहुत नाटकीय ड्रामेटिकली तरीके से जीता। देन उसके बाद कभी भी भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला नहीं हुआ। सो वी आर सो एक्साइटेड कि भारत ने जिस डोमिनेंस के साथ पाकिस्तान को हराया, एंड वी वर सो एक्साइटेड फ्रॉम द मॉर्निंग टाइम। मगर वो ज़बरदस्त मुकाबला देखने को नहीं मिला जैसा कि आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया, और आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जिस हाई स्कोरिंग गेम था, वो हाई स्कोरिंग गेम यहाँ पे भी चाहिए था। अगर पाकिस्तान 270, 280, 290 तक करता तो एक और ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती। हालांकि ये भी स्कोर थोड़ा सा फंस जरूर गया था, लेकिन अगर 45 बॉल रहते कोई टीम जीत जाती है तो उसे वन साइडेड ही कहेंगे। एंड अब भारत को एक हफ्ते के बाद 2 मार्च को न्यूजीलैंड से खेलना है। सो इट वाज ए इनफ टाइम टू रिकवर, टू रिफ्रेश। और मोहम्मद शमी को जो फिटनेस इशू हुआ था, मुझे नहीं पता कि मेडिकल न्यूज़ क्या है उनके बारे में। आई होप कि वह न्यूजीलैंड वाला मैच खेले। सेमीफाइनल लगभग भारत का तय हो गया कि अब भारत ही पहुंचेगा। न्यूजीलैंड तो पक्का है। अगर कल बांग्लादेश के साथ न्यूजीलैंड जीत जाता है तो पूरी तरह से न्यूजीलैंड के 6 पॉइंट हो जाएंगे, तो वो तो एकदम से क्वालिफाई कर जाए। भारत भी क्वालिफाई कर गया और पाकिस्तान लगभग बाहर है इस टूर्नामेंट से। अगर कल बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हराता है और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हराता है बड़े अंतर से, फिर जाकर कहीं उनके लिए इक्वेशन बनेगी। सो इट कैन बी नॉट ए वेरी इजली इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं इस मैच की वापस। विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेलबर्न वाली पारी याद आ गई, और बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं वो, और इस तरीके से उन्होंने पारी खेली, भारत को जिता कर ही दम लिया। जब 4 या 5 रन रह गए थे तो ऐसा लग रहा था उनकी सेंचुरी नहीं होगी, बट ही इज़ ए किंग कोहली वी कैन कॉल्ड। सो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। और जब इतने करीब कोई भी प्लेयर हो तो उससे छोड़ा नहीं जाता शतक पूरा करने के लिए। सो मैनी कंग्रेचुलेसन एरमेका प्लेयर ऑफ द मैच, उसके लिए उन्हें मिला। और अब बात कर लेते हैं कुछ और रिकॉर्ड्स की। जैसे भारत के जो गेंदबाज थे उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। हार्दिक पांड्या ने 8 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए। और हमारे जो स्पिनर्स थे, जो तीनों स्पिनर्स थे, उन्होंने कुल मिला करके आई थिंक लगभग 30 ओवर डाले हैं। और केवल अक्षर पटेल ने 10 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट लिए। उनके ही पूरे ओवर्स कोटा हुए हैं। रविंद्र जडेजा के 7 ओवर में 40 रन 1 विकेट। और आप कह सकते हैं कुलदीप यादव के 9 ओवर में 43 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिए। तो भारत के जो स्पिनर्स हैं, जो बहुत सारे स्पिनर्स भारत लेकर गया, उनका यूज किस तरह से करना है वह भारत कर रहा। आप देखना होगा कि वरुण चक्रवर्ती को क्या न्यूजीलैंड के मैच में अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव में से एक को बाहर करके उन्हें मौका दिया जाता है, क्योंकि मौका देना बहुत ज़रूरी है। भारत लगभग सेमीफाइनल में है, तो उन्हें मौका देकर यह देखना होगा कि वो गेंदबाजी कैसे करते हैं इन कंडीशंस में। क्योंकि कहीं अगर फाइनल में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो एक तरीके से भारत के पास एक विकल्प होगा, या भारत इसे छिपाना भी चाहता है कि सेमीफाइनल या फाइनल में उसका यूज करें ताकि टीमें उसको पढ़ ना पाएँ। तो अब देखना होगा कि भारत करता क्या है। बट मैनी कंग्रेचुलेशंस and it's a perk celebration time. We have beaten the Pakistan in 8 consecutive matches in the ICC ODI World Cup. So once again, happy moments, enjoy this superb Sunday। पूरी तरह से superb Sunday रहा, भारत ने डोमिनेंस किया, और आशा करते हैं इसी डोमिनेंस के साथ हर मैच भारत जीते, नॉकआउट्स और फाइनल भी, और एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास आए 12 साल बाद। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन many congratulations to the Team India and their fans, including me. Enjoy this victorious night.